Preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise previous questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. So it's related to treasury product. Treasury product यानी कि अब मैंने आपको बताया कि हम डील करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, हम डील करने वाले हैं मनी मार्केट में, हम डील करने वाले हैं सिक्योरिटीज मार्केट में. अब पर्टिकुलरली इन मार्केट्स में क्या क्या प्रोडक्ट रहता है जिसमें ट्रेजरी डील करता है, ठीक है. यानी कि जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, जहां से हम फंड्स को रेज करते हैं, जहां पर हम फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी कि चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली दैट इज ऑल रिलेटेड टुवर्ड्स व्हाट, दैट इज रिलेटेड टुवर्ड्स द ट्रेजरी प्रोडक्ट्स ओवर देयर. अगर हम फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स की बात करते हैं यहां पर, जहां पर हम फॉरेन करेंसी में डील करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि स्पॉट ट्रेड करेंगे. स्पॉट ट्रेड पर्टिकुलरली क्या होता है? स्पॉट रेट ट्रांजैक्शन क्या होती है? व्हाट इज स्पॉट रेट ट्रांजैक्शन? एक तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है कैश रेट ट्रांजैक्शन. कैश रेट ट्रांजैक्शन होती है जहां पर सेम डे सेटलमेंट हो जाती है, यानी कि T+0 बेसिस पर सेटलमेंट होती है. ठीक है. एक हमारे पास होती है टोम बेस. तो हमारे पास होती है एक तो कैश रेट बेस होती है ट्रांजैक्शन, एक हमारे पास होती है टोम बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है, एंड फर्दर द अदर वन इट इज अ स्पॉट रेट ट्रांजैक्शन ओवर देयर. तो कैश रेट के केस में, जो ट्रांजैक्शन के केस में हमारे पास सेटलमेंट होती है दैट इज T+0 बेसिस, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगी. एंड टोम के केस में होती है T+1 बेसिस के ऊपर सेटलमेंट होती है, एंड स्पॉट रेट के केस में जो हमारे पास सेटलमेंट होती है दैट इज T+2 डेज बेसिस, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद अगले 2 दिन में 2 वर्किंग डे जो है, तो दोनों सेंटर्स में वर्किंग डे होंगे, वहां पर आपके पास सेटलमेंट हो जाएगी. दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्पॉट रेट. ठीक है. तो मोस्टली जितने भी हमारे पास ट्रेड होते हैं, करेंसी ट्रेड्स होते हैं, दोज आर ऑन स्पॉट रेट. वो स्पॉट रेट के ऊपर होते हैं, जिसमें जो सेटलमेंट होती है T+2 डे बेसिस पर होती है, जिसमें सेटलमेंट जो है वो T+2 डे बेसिस पर होती है. लेट्स से कि मैंने यहां पर किसी करेंसी को परचेज कर लिया T+2 डे बेसिस पर एंड फर्दर उसे सेल कर दिया, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द स्पॉट ट्रेड. उसको हम स्पॉट ट्रेड कहते हैं. इसके अलावा करेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि करेंसी जो खरीदा बेचा जा सकता है उसको कैश रेट बेसिस के ऊपर, रेडी रेट बेसिस जिसको हम कहते हैं, या फिर टोम रेट के बेस पर भी उसको खरीद बेच सकते हैं. देन इट इज रिलेटेड टू फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली क्या होता है? जहां पर आपकी जो सेटलमेंट डेट रहने वाली है, इफ इट इज ग्रेटर देन T+2 डे बेसिस, अगर हमारे पास जो सेटलमेंट डेट हमारे पास रहने वाली है दैट इज ग्रेटर देन T+2 डे बेसिस, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. लाइक अगर मुझे करेंसीज को 1 महीने के बाद सेल करना है, मुझे करेंसी को 1 महीने के बाद खरीदना है, तो दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. एंड जो फॉरवर्ड रेट स्टैब्लिश की जाते हैं, दोज आर एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स के बेस पर जो फॉरवर्ड रेट होते हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाता है. इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है. ठीक है. तो यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हुए स्वैप भी बन सकते हैं, इवन स्पॉट का इस्तेमाल करते हुए स्वैप बन सकते हैं, जहां पर हमने साथ के साथ एक ट्रांजैक्शन खरीदने की कर ली, एक ट्रांजैक्शन बेचने की कर ली, या पहले बेचने की ट्रांजैक्शन कर दी फिर खरीदने की ट्रांजैक्शन कर दी. ठीक है. तो वो चीजें यहां पर हो सकती हैं. तो फॉरवर्ड रेट के केस में हमारे पास क्या है? लाइक अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास USD का जो रेट है, लेट्स से 1 USD इज इक्वल टू 76.10/30. ठीक है. एंड साथ के साथ मुझे यहां पर 1 मंथ के फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए गए हैं 30/35. ठीक है. तो पर्टिकुलरली इफ आई वांट टू गेट 1 मंथ फॉरवर्ड बाय रेट,
अगर मुझे 1 मंथ फॉरवर्ड बाय रेट देखना है तो पर्टिकुलरली क्या रहेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय रेट अगर देखना है तो पर्टिकुलरली क्या होगा, काइंड प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट व्हाट वुड बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, सबसे पहली चीज है कि यहां पर 76.10 76.30 में से बाइंग रेट कौन सा है, क्योंकि पर्टिकुलरली आई एम कंसर्न्ड अबाउट द बाइंग रेट। एंड फर्दर यहां पर मर्चेंट रेट नहीं लेंगे, मर्चेंट रेट का मतलब होता है ऑपोजिट रेट को कंसीडर करना, यानी कि कस्टमर के लिए बाय रेट वो होगा जिस रेट के ऊपर यहां पर बैंक सेल करने को तैयार है, क्योंकि यहां पर कोई रेफरेंस नहीं दिया गया मर्चेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इंटरबैंक मार्केट रेट को ही हम कंसीडर करने वाले हैं, सो बाइंग रेट को ही कंसीडर करेंगे। सो बाइंग रेट इट वुड बी 76.10। तो बाइंग रेट हमारे पास क्या रहेगा, इट विल बी 76.10, ये हमारे पास बाइंग रेट आ गया। अब 1 मंथ फॉरवर्ड डिफरेंशियल में अगर देखें, हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये हमारे पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है। एंड सिंपल सा फंडा रहता है, इफ द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, इसका मतलब रहता है जो करेंसी है वो प्रीमियम के ऊपर अवेलेबल है, जो करेंसी है दैट इज अवेलेबल ऑन प्रीमियम ओवर देयर। एंड अगर करेंसी प्रीमियम के ऊपर अवेलेबल होती है तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, वी डू एड अप द फॉरवर्ड पॉइंट्स ओवर देयर। सो 76.10 प्लस 0.30 दैट इज इक्वल टू 76.40, दैट वुड बी द आंसर ओवर हियर। सुमन यादव ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 76.10 वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो आपको यहां पर रेट डिस्कवरी करनी आनी चाहिए कि आपने रेट को किस तरह से डिस्कवर करना है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मॉड्यूल ए वीडियोस इन डिटेल। Now let's relate to it's related to swaps over there। मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्वैप पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब आप दो ट्रांजैक्शंस को मिला देते हैं, एक खरीदने वाली ट्रांजैक्शन को एक बेचने वाली ट्रांजैक्शन के साथ मिला देते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर। यानी कि ये हमारे पास स्पॉट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लाइक अगर मैं कहता हूं कि मैंने 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ आई जस्ट हैव बॉट द यूएसडीज, मैंने यूएसडीज को बाय कर लिए। एट द सेम टाइम मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेट्स से कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 महीने के बाद मैं यूएसडीज को यहां पर क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन जो है दोनों का, क्योंकि सेम क्वांटिटी को खरीदा बेचा जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, दैट वुड बी द स्वैप ट्रांजेक्शन ओवर हियर, वो स्वैप ट्रांजेक्शन रहेगी, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड। सिमिलरली यहां पर अगर हम स्पॉट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, वो भी यहां पर स्वैप ट्रांजेक्शन रहेगी, वो भी स्वैप ट्रांजेक्शन ही रहेगी, ओके। Now let's relate it's related to the investment of foreign exchange surpluses। अब फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस हो कैसे सकते हैं आपके पास फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस कहां से रहेंगे, ठीक है। लाइक अगर आपके पास सरप्लस होंगे तो एक तो हो सकता है कि आपको यहां पर ट्रेजरी जो आपके ऑपरेशंस हुए हैं, जो आपने ट्रेजरी के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस किए हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, या फिर हो सकता है कि आपके ओवरसीज जो फंक्शंस हैं वहां पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, या फिर आपके पास जो डिफरेंट अकाउंट होते हैं, जैसे एफसीएनआर अकाउंट है, आरएफसी अकाउंट है, एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, या फिर आपके पास आरएफसी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो डायमंड डॉलर अकाउंट्स हैं, डीडी अकाउंट हो गए, गोल्ड कार्ड स्कीम कार्ड्स अकाउंट हो गए, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलरली जो ईएफसी अकाउंट हो गए जहां पर एक्सचेंज फॉरेन करेंसी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास पैसे पड़े होते हैं। इवन आपके पास नोस्ट्रो में सरप्लस बैलेंसेस पड़े हैं, आपका जो नोस्ट्रो अकाउंट है यानी कि बाहर की कंट्री में ऑपरेशंस चलाने के लिए आपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास कोई ना कोई अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो वहां पर आपका नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड है, तो पर्टिकुलरली हो सकता है कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपका बैलेंस मेंटेन्ड है, तो वो भी एक आपके पास सरप्लसेस अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने जो भी पैसा बाहर से बोरो किया, हो सकता है कि आपने ईसीबी लियो यानी कि आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की हो बाहर से, ठीक है। आपके जो भी पैसे फॉरेन करेंसी के केस में आपके पास पड़े हैं, दोज आर योर सरप्लसेस, वो आपके पास क्या है, सरप्लसेस है। अब ऐसे पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उससे आप और ज्यादा प्रॉफिट आगे कमा पाए, ओके। सो बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज सरप्लसेस को ग्लोबल मनी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स को ये चीज की परमिशन दी गई है। क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं जहां पर बैंक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला है इंटरबैंक लोन। अब देखिए, हो सकता है कि किसी बैंक के पास सरप्लस हो सकता है किसी दूसरे बैंक को जरूरत हो, तो यहां पर नॉर्मली 1 साल तक के पीरियड के लिए जो पैसे हैं वो बैंक्स आपस में एक दूसरे को लेन देन कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स एक दूसरे को चाहिए होते हैं, ठीक है। क्यों चाहिए होते हैं, अब बैंक्स ने अपने जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उनको लेंडिंग करनी है, उनको एंड फर्दर उसके केस में पर्टिकुलर क्या होगा, आपको फॉरेन करेंसी रिजर्व चाहिए। अब एक बैंक के पास रिजर्व ज्यादा है, दूसरे के पास नहीं है, तो इंटर बैंक बोरोइंग की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली ये 1 साल तक के पीरियड के लिए की जाती है।
एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बैंक्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बैंक्स परमिटेड टू इन्वेस्ट ओवरसीज इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आप जो हाई क्वालिटी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाई क्वालिटी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप वहां पर परमिट किया गया है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म के लिए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, गिल्ट इश्यूज हैं, जो गिल्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, या फिर जो डेप्ट पेपर्स हैं जो कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, यानी कि जो कंपनीज जिनकी जो रेटिंग है वो AAA है, यानी कि काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग है, उनके द्वारा इशू की है. तो उसके केस में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो दैट इज आल्सो अलाउड ओवर देयर. एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू नोस्ट्रो अकाउंट. अब नोस्ट्रो अकाउंट के केस में क्या रहता है, फंड्स ना वेकेंट पड़े रहते हैं. एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं. लेट्स से कि यहां पर बैंक XYZ है एंड फर्दर यहां पर इसका कॉरेस्पोंडेंट बैंक है यूएसए में, लेट्स से जो है दैट इज ABC बैंक ओवर हियर, जहां पर XYZ बैंक ने अपना नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया हुआ है. नोस्ट्रो अकाउंट पर्टिकुलरली क्या रहता है, बैंक XYZ का फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसके थ्रू यहां पर ये अपने फंक्शनरीज को चला रहा है थ्रू द कॉरेस्पोंडेंट बैंक ABC ओवर देयर. ठीक है, तो लेट्स से यहां पर 9 मिलियन USDs, यहां पर 9 मिलियन USDs वेकेंट पड़े हैं, जिनका फिलहाल के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है. ठीक है, तो यहां पर कई कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स ये सर्विसेज को अलाउ करते हैं, कई कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स जो सर्विसेज को अलाउ करते हैं कि अदरवाइज तो देखिए ये जो बैलेंसेस होते हैं ये इंटरेस्ट फ्री होता है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट कॉरेस्पोंडेंट बैंक पे नहीं करता है. ठीक है, लेकिन कई कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग सर्विसेज अलाउ करते हैं कि वो ना एक फ्लोटिंग बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड उस फ्लोटिंग बैलेंस को फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको फर्दर क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं. जब ये पैसा आगे इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर रिटर्न मिलेगी एंड डेफिनेटली द बैंक विल बी अर्निंग अ रिटर्न ऑन दिस अकाउंट. तो बैंक इस अकाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न को अर्न कर पाएगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड की जाती है. जैसे अभी 9 मिलियन पड़ा है तो हो सकता है कि 5 मिलियन के ऊपर स्वीप बन जाए कि 5 मिलियन के ऊपर जैसे बैलेंस होगा साथ के साथ ही पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा. जैसे 5 मिलियन से कम होगा इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी एंड फर्दर दैट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट. ठीक है, तो ये चीज ऐसी हो सकती है. कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स जो होते हैं वो एक्सेस फंड्स को मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डिंग बैंक ओवर दिया एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसमें से कुछ कमीशन को रखते हुए वो बाकी का इंटरेस्ट जो होता है वो पे कर देते हैं टू द अकाउंट होल्डिंग बैंक ओवर दिया. ओके, फर्दर इट इज रिलेटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस. अब क्रेडिट जो है वो वैसे तो देखिए ट्रेजरी का काम नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी जो है दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्रेडिट डिपार्टमेंट, यानी ना तो वो अप्रेजल में साथ देती है ना ही वो डिसबर्समेंट में साथ देती है. ठीक है, लेकिन यहां पर ट्रेजरी जो होती है, जैसे मान लीजिए क्रेडिट डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करता हूं रिलेटेड टू द क्रेडिट डिपार्टमेंट, अब क्रेडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्री शिपमेंट फैसिलिटी, पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटीज को यहां पर ग्रांट करेगा. फर्दर हो सकता है कि इंपोर्टर्स को भी फॉरेन करेंसी लोन की जरूरत पड़ी हो तो वो भी ग्रांट करेगा. लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट को पहले यहां पर एक कह लीजिए एक तरह से सैंक्शन लेनी पड़ती है फॉरेन करेंसी एडवांसेस के लिए. जहां पर भी फॉरेन करेंसी एडवांसेस जो है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट ने सैंक्शन करने हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो रिजर्व्स तो हिलेंगे ना बैंक के. तो पर्टिकुलरली अदरवाइज वो रिजर्व्स किसके पास अवेलेबल थे, वो रिजर्व्स यहां पर ट्रेजरी के पास अवेलेबल थे, ट्रेजरी के डिस्पोजल के ऊपर अवेलेबल थे कि वो यहां पर फर्दर उसका इस्तेमाल कर सकते थे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए. लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट ने अब लैंडिंग करनी है तो पर्टिकुलरली फॉरेन करेंसी रिजर्व चाहिए, उनको भी चाहिए डिसबर्स करने के लिए. तो यहां पर वो एक अप्रूवल लेते हैं, एक सैंक्शन लेते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, ताकि वो फंड्स को इस्तेमाल कर पाए एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या रहने वाली है उसके रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाएगा कि क्या कॉस्ट रहेगी, क्या अवेलेबिलिटी रहेगी. ओके, बैंक्स जो है वो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स भी सैंक्शन करते हैं अपने कस्टमर्स को फॉरेन करेंसी में. FCNR लोन्स जो होते हैं वो सबमिट यहाँ पर सैंक्शन किए जाते हैं, जहां पर फॉरेन करेंसी लिमिट प्रोवाइड की जाती है एंड फर्दर डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्स भी की जाती है. तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी जो सैंक्शन अप्रूवल है वो यहाँ पर ट्रेजरी से पहले लिया जाता है. देन इट इज रिलेटेड टू रीडिस्काउंटिंग ऑफ द फॉरेन बिल्स. It is related to the rediscounting of the foreign bills. What do you mean by the rediscounting of the foreign bills? Let's just have an example over here. अब डिस्काउंटिंग क्या होती है, पहली बात तो डिस्काउंटिंग बिल सर्विसेज क्या होती है. जो डिस्काउंटिंग सर्विसेज है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम है. ठीक है, लाइक यहाँ पर XYZ बैंक है एंड फर्दर लेट्स से कि यहाँ पर एक एक्सपोर्टर था, जिसने कि एक्सपोर्ट कर दिया एंड फर्दर इसने एक बिल ड्रॉ कर दिया था इंपोर्टर के ऊपर. इंपोर्टर ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड फर्दर ये बिल वापस आ गया एक्सपोर्टर के पास. द बिल वाज पर्टिकुलरली द बिल ऑफ एक्सचेंज in which particularly the exporter ordered the importer so as to pay the amount of let's suppose the amount to be USD 1 million, कि 1 मिलियन USD का जो अमाउंट था
वो इंपोर्टर के द्वारा आफ्टर 3 मंथ्स पे किया जाएगा। यानी कि ये यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं, जहां पर साइड बिल नहीं है, यानी कि ऑन प्रेजेंटेशन पेमेंट नहीं करनी है, एक पर्टिकुलर पीरियड दे दिया 3 महीने का, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। बट एक्सपोर्टर को लिक्विडिटी चाहिए थी, तो एक्सपोर्टर यहां पर बैंक के पास आ गया एंड फर्दर इसने कहा कि आप इस बिल को डिस्काउंट कर दीजिए, कि इस बिल के बदले में मुझे पैसे दे दीजिए, एंड फर्दर जब भी यहां पर टाइम पीरियड खत्म होगा तो आप यहां पर बिल को पिक कर लीजिए एंड फर्दर उसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर XYZ बैंक ने लेट्स से कि 9.90 जो लाख यूएसडी थे, 10,000 अपनी फीस कट करके, 10,000 यूएसडी की फीस कट करके, यहां पर जो बाकी के यूएसडीज थे उसके हिसाब से जो भी अमाउंट बचता था वो यहां पर पे कर दिया, किसको? एक्सपोर्टर को पे कर दिया। ओके, अब यहां पर जो पैसे बैंक के पास आएंगे वो 3 महीने के बाद आएंगे। तो ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है? दिस इज रिलेटेड टू क्रेडिट डिपार्टमेंट। ये क्रेडिट डिपार्टमेंट का फंक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो रेगुलेटरी कैपिटल है वो यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी। लेट सपोज आफ्टर 1 मंथ XYZ बैंक वाज आउट ऑफ लिक्विडिटी, तो XYZ बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत चाहिए थी, तो जरूरत थी, तो उसके केस में यहां पर इन्होंने क्या किया कि ये एक्सिम बैंक के पास चले गए एंड फर्दर इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो ये बिल था इसको रीडिस्काउंट करवा लिया। अब डिस्काउंटिंग में पर्टिकुलरली क्या होगा? अब जो बिल यहां पर बैंक के नाम में फर्दर अवेलेबल था, बैंक के नाम में यहां पर अवेलेबल था, अब क्योंकि बैंक तो डिस्काउंट करवा चुका था, तो यहां पर अब ये बिल फर्दर एक्सिम बैंक के नाम में डिस्काउंट आगे फिर से एक बार करवा लिया गया, जिसके बदले में एक्सिम बैंक जो है वो यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया गया XYZ बैंक को, कुछ एक मार्जिन यहां पर एक्सिम बैंक शेयर करेगा एंड फर्दर, लेकिन इसमें यहां पर जो जिम्मेदारी रहेगी रिकलेक्शन की, यानी कि जो भी यहां पर पेमेंट्स कलेक्ट करनी है एंड जो जिम्मेदारी रहेगी वो विदाउट रिकोर्स रहेगा, यानी कि जो ये रीडिस्काउंटिंग दोबारा से की गई है ये विदाउट रिकोर्स बेसिस पर रहेगी, यानी कि अल्टीमेट जिम्मेदारी जो है वो यहां पर XYZ बैंक की ही रहने वाली है। लेकिन अब क्योंकि ये एक्सपोजर ये रीडिस्काउंटिंग की गई है, अब क्योंकि ये बिल जो था वो रीडिस्काउंट किया गया है, ये जो एक्सपोजर पहले की क्रेडिट एक्सपोजर था, जो कि पहले क्रेडिट एक्सपोजर था, अब वो इंटरबैंक एक्सपोजर में कन्वर्ट हो गया है। अब वो इंटरबैंक एक्सपोजर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब तो एक्सपोजर आपका यहां पर नॉर्मल क्रेडिट एक्सपोजर था तो वहां पर रेगुलेटरी कैपिटल काफी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन जब आपका एक्सपोजर इंटरबैंक एक्सपोजर बन गया है तो वहां पर पर्टिकुलरली आपको जो कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है वो डेफिनेटली काफी कम मेंटेन करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए। ये पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो गया रिलेटेड टू कि रीडिस्काउंटिंग होती क्या है, कि रीडिस्काउंटिंग होती क्या है। काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी यहां पर आपको कंफर्म करना है रिलेटेड कि आपको ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट ओवर हियर एंड फर्दर एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड टू द अटेंडेंस। तो आज की ये जो अटेंडेंस शीट है फटाफट से मार्क कर दीजिए एंड गेट द फ्री EPDS। तो कल की डेट में जिन लोगों को फ्री EPDS असाइन की जाएंगी उनका नाम जो है वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा, क्योंकि 5 पर्सन जो है इनमें से उनको यहाँ पर ये फ्री EPDS मिलने वाली हैं। तो काइंडली प्लीज डू मार्क योर अटेंडेंस ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। ओके, तो रीडिस्काउंटिंग का पार्ट समझ में आ गया कि रीडिस्काउंटिंग पर्टिकुलरली होती क्या। अब रीडिस्काउंटिंग का जो ये पीरियड होता है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर एडवांस मिलता है, दैट इज पर्टिकुलरली यानी कि जो भी एडवांसेस यहाँ पर जिनमें यूसेंस पीरियड 15 दिन से लेकर के 360 दिन तक का है, उसके बेसिस पर रीडिस्काउंटिंग करवाई जा सकती है, उसके बेस पर रीडिस्काउंटिंग करवाई जा सकती है। दैट इट इज रिलेटेड टू मनी मार्केट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोडक्ट्स के बारे में था। नाउ इट्स रिलेटेड टू मनी मार्केट प्रोडक्ट। मनी मार्केट क्या होती है पर्टिकुलरली? जहां पर आप एक दिन से लेकर के 365 डेज यानी कि 1 साल तक के पीरियड के लिए यहां पर आप डील करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट इज योर मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज कर सकते हैं, जहां पर मैच्योरिटी जो है वो 1 साल से ज्यादा आपकी नहीं होने वाली है। एंड फर्दर इंटरबैंक मार्केट जो ये मनी मार्केट रहती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि अगर मैं मनी मार्केट में इंटरबैंक मार्केट की बात करता हूं तो वहां पर जो बोरोइंग लैंडिंग की जाती है बेस्ड अपॉन द डेज ऑफ मैच्योरिटी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर तो मेरे पास मैच्योरिटी जो है वो 1 दिन की है यानी कि ओवरनाइट बेसिस पर है, तो यहां पर उसे कॉल मनी कहते हैं। अगर मेरे पास जो मैच्योरिटी है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 2 डेज टू 14 डेज, यानी कि अगर तो 1 डे मैच्योरिटी है तो उसे हम कॉल मनी कहेंगे। अगर 2 दिन से लेकर के 14 दिन की मैच्योरिटी है तो उसे हम यहां पर नोटिस मनी कहेंगे। एंड फर्दर इफ इट इज ग्रेटर देन 14 डेज, इफ इट इज ग्रेटर देन 14 डेज बट इट इज अप टू 365 डेज, बट इट इज अप टू 365 डेज, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी द टर्म मनी मार्केट। तो उसको हम टर्म मनी मार्केट कहेंगे। इज दैट क्लियर?
ये चीज क्लियर होगी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर तो 1 डे है तो यहां पर कॉल मनी, अगर 2 to 14 डेज है तो नोट आपके पास रहेगी नोटिस मनी, एंड अबव दैट इट इज अ टर्म मनी ओवर देयर, यानी कि लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ओवरनाइट रिप्लेसमेंट्स के लिए आप यहां पर कई बार क्या होता है कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए, जहां पर आपको सिंगल डे के लिए फंड चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, जहां पर आपके जो ओवरनाइट जो माइबोर रेट है उसको बेंचमार्क रेट की तरह यूज किया जाता है, जिसको बेंचमार्क रेट की तरह यूज किया जाता है। बेंचमार्क रेट पर्टिकुलरली क्या होता है कि उस रेट के ऊपर आप स्प्रेड को रख करके अपना जो रेट है, फाइनल रेट है, उसे कैलकुलेट करेंगे। तो माइबोर क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। माइबोर जो होता है दैट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। इस रेट को वाइडली यूज किया जाता है कॉल मार्केट में, कॉल मनी मार्केट में एज द बेंचमार्क रेट ओवर देयर। अगर नोटिस मनी की बात करते हैं तो यहां पर जहां पर फंड्स आपने डिप्लॉय किए हैं या रेज किए हैं beyond 1 day, beyond overnight and up to 14 days, that is the notice money over there। and जिस मार्केट में आपने फंड्स को डिप्लॉय किया है, रेज किया है above 14 days and up to 365 days, that is particularly the term money over there। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट यहां पर मनी मार्केट का है, यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले सबसे पहले, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स पर्टिकुलरली क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, एंड फर्दर इशू ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, बट इशू किए जाते हैं थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे पास 3 तरह की मैच्योरिटीज में रहते हैं, दैट इज 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। यानी कि जब भी हम ट्रेजरी बिल की बात करते हैं तो मैच्योरिटी जो रहेगी वो 91 डेज की रहेगी, या 182 डेज की रहेगी, या 364 डेज की रहेगी। एंड इनकी जो यील्ड लेवल है, इनके जो यील्ड ग्राफ है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, चाहे हैं वो ट्रेजरी बिल्स ही हैं, क्योंकि वो डिफरेंट ड्यूरेशन के हैं। तो यहां पर जो यील्ड आपके पास ग्राफ है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी स्टीपनेस लेवल में डिफरेंस रहता है। लाइक अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहां पर 91 डेज की जो ट्रेजरी की यील्ड है वो इस तरह से कर्व है, एंड सेकंड का यील्ड कर्व इस तरह से है, एंड थर्ड का यील्ड कर्व इस तरह से है, तो पर्टिकुलरली यू कैन लोकेट द डिफरेंसेस कि यील्ड कर्व में क्या है डिफरेंसेस है, यील्ड कर्व में क्या है पर्टिकुलरली डिफरेंसेस है। एंड ये जो यहां पर ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जाते हैं, ये डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जाते हैं, यानी इनके ऊपर एज सच इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। जो यील्ड इनमें डिफाइन की रहती है दैट इज द इम्प्लिसिट यील्ड, दैट इज द इम्प्लिसिट यील्ड। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि 1 करोड़ का ट्रेजरी बिल था, 1 करोड़ का ट्रेजरी बिल था, एंड दैट वाज इशूड फॉर 95 लाख, उसे 95 लाख के लिए इशू किया गया। तो पर्टिकुलरली जो 5 लाख रुपीज हैं वो क्या रहेंगे यहाँ पर? दैट वुड बी द इम्प्लिसिट यील्ड, यानी कि आपको 1 करोड़ का जो यहां पर ट्रेजरी बिल है उसकी फेस वैल्यू तो 1 करोड़ की है, लेकिन आपको मिलेगा 95 लाख का। एंड फर्दर जब आप उसको रिडीम करवाएंगे मैच्योरिटी के ऊपर तो यू विल बी गेटिंग ₹1 करोड़ ही, यानी कि आपने पे 95 लाख किया लेकिन आपको मिलेगा 1 करोड़ ही। तो पर्टिकुलरली वो क्या हो गया? आपकी इम्प्लिसिट यील्ड काउंट की जाएगी। एंड प्राइजेस जो है वो यहां पर आरबीआई इनकी ऑक्शन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स की ऑक्शन करता है, उसके थ्रू यहां पर जो प्राइजेस हैं वो यहां पर डिफाइन किए जाते हैं। एंड फर्दर यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स पड़े तो डेफिनेटली आप यहां पर अपने सरप्लसेस को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। एंड फर्दर यहां पर जो यील्ड रहती है वो यहां पर ओवरनाइट जो कॉल मनी मार्केट रहती है उनसे तो ज्यादा ही रहने वाली है। तो डेफिनेटली यू कैन अर्न द इंटरेस्ट ओवर हियर बाय प्लेसिंग योर सरप्लसेस, क्योंकि ये यहां पर रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन कहलाती है। एंड फर्दर ट्रेजरी बिल्स के केस में लिक्विड सेकेंडरी मार्केट भी रहती है। एक तो हमारे पास प्राइमरी मार्केट होगी जहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इनको इशू कर रहा है, वो आपके पास होगी प्राइमरी मार्केट होगी। लेकिन देयर आफ्टर जो ट्रेजरी बिल की यील्ड है वो यहां पर पर्टिकुलरली क्या रहता है, वो यहां पर उसके बेस पर आप सेकेंडरी मार्केट में भी इनको खरीद बेच सकते हैं। ट्रेजरी बिल जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, एंड इसको एसजीएल यानी कि सब्सिडरी जनरल अकाउंट जो कि बैंक्स के द्वारा, मेंबर बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वहां पर इसे मेंटेन किया जाता है। दैट इट इज रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर तो ट्रेजरी बिल तो हो गया जहां पर आपको इम्प्लिसिट यील्ड मिलती है। एक बार यहां पर ये पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। ट्रेजरी बिल जो है ये रहता है कि इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है थ्रू द आरबीआई, आरबीआई के थ्रू इशू किया जाता है। फर्दर इट इज रिलेटेड टू कि दीज आर इशूड फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज की मैच्योरिटीज में इनको इशू किया जाता है। एंड फर्दर दीज आर अवेलेबल ऑन डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जाते हैं। तो यहां पर क्या रहता है? इम्प्लिसिट यील्ड रहती है, देयर इज इम्प्लिसिट यील्ड ओवर देयर। एंड फर्दर ये यहां पर सेकेंडरी मार्केट भी इनकी अवेलेबल रहती है। एंड ये यहां पर कमर्शियल आपके जो एसएलआर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के काम भी आते हैं, एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के काम भी आते हैं। ओके, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेजरी बिल। अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर क्या है? दिस इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाते हैं।
एंड फर्दर दीज आर इशूड इन फॉर्म हेल्ड इन फॉर्म ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट एंड फर्दर किसी भी डिपॉजिटरी जो कि अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, वहां पर ये मेंटेन हो सकते हैं। तो क्या पर्टिकुलरली क्या रहते हैं, मैं यहां पर वर्ड्स लिख देता हूं, काइंडली प्लीज डू मार्क द वर्ड्स। अनसिक्योर्ड है, क्या है, अनसिक्योर्ड है, यानी कि कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो मैच्योरिटी रहने वाली है वो एक दिन से लेकर के 365 डेज 1 ईयर तक की ही मैच्योरिटी रहने वाली है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड इशू किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाते हैं, यानी कि जो कमर्शियल पेपर है दैट इज पर्टिकुलरली एक प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट पर्टिकुलरली क्या रहता है, जिसमें दो पार्टीज रहती है। लेट्स से कि ए पर्सन ने बी पर्सन के पैसे पे करने, ए पर्सन ने बी पर्सन के पैसे पे करने हैं, तो ए पर्टिकुलरली क्या हो गया, डेप्टर हो गया जिसने पैसे उधार पर लिए होंगे, ठीक है, एंड बी पर्सन क्या होगा, क्रेडिटर हो गया जिसने पैसे उधार पर दिए होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया दोनों में। अब प्रोमिसरी नोट जो होता है वो किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है, एनीवन कैन प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। प्रोमिसरी नोट जो होता है वो यहां पर किन के द्वारा इशू किया जाता है, हु बेसिकली ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट, डेप्टर और क्रेडिटर, डेप्टर और क्रेडिटर, हु विल बी ड्रॉइंग द प्रोमिसरी नोट ओवर हियर। अगर ए ने बी को पैसे देने हैं, ए इज द डेप्टर ओवर देयर, बी इज द क्रेडिटर ओवर देयर, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोमिसरी नोट, तो दैट इज पर्टिकुलरली ड्रॉन बाय whom, दैट इज ड्रॉन बाय द डेप्टर। वेरी राइट, सुमन यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो यहां पर डेप्टर है वो ड्रॉ करता है। सो ए इज अ ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ए इज द ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जहां पर जो डेप्टर है यानी कि जिसने पैसे उधार पर लिए हैं, वो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है। क्या करता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है कि पर्टिकुलरली कुछ एक टाइम के बाद या जो भी टाइम पीरियड उसमें नोट डाउन किया गया है उसके हिसाब से वो पैसे पे करेगा, वो पैसे पे करेगा। एंड बी इज द पे ओवर हियर, जिसको पैसे ये वापस किए जाने हैं, जिसको ये पेमेंट की जानी है। सो बी इज द पे ओवर दियर। इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर। ओके, सो कमर्शियल पेपर क्या है कि ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है, डीपेंटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहता है। एंड कहां पर मेंटेन रहेगा, जो भी डिपॉजिटरी यहां पर अप्रूव की गई है, रजिस्टर्ड की गई है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके द्वारा वहां पर ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में यहां पर स्टोर किया जाएगा, वहां पर रिटेन किया जा सकता है। एंड फर्दर दीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। एंड फिम्डा के द्वारा जो मार्केट प्रैक्टिसेस दी गई हैं उनको फॉलो किया जाता है। फिम्डा क्या पर्टिकुलरली, फिम्डा इज फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिम्डा इज फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उनके द्वारा जो मार्केट गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई हैं उनके हिसाब से यहाँ पर उनको प्रिस्क्राइब करना, उनको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। कमर्शियल पेपर जो है वो यहाँ पर मिनिमम डिनोमिनेशन जो रहती है, कमर्शियल पेपर की मिनिमम जो डिनोमिनेशन रहती है दैट इज पर्टिकुलरली 5 लाख पर डिनोमिनेशन। मिनिमम जो है 5 लाख की यहां पर कम से कम डिनोमिनेशन रहेगी, मल्टीपल हो सकती है, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से डिनोमिनेशन के साथ जो कमर्शियल पेपर है वो इशू किया जाएगा। अगर मैं मैच्योरिटी की बात करता हूं तो मैच्योरिटी जो है वो 7 दिन से लेकर के 12 महीने तक की मैच्योरिटी हो सकती है, 12 महीने तक की मैच्योरिटी हो सकती है। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं ना, तो जो भी कंपनी यहां पर कमर्शियल पेपर्स को इशू करती है उसे पहले क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। लेट सपोज कि यहां पर XYZ कंपनी है जिसने कमर्शियल पेपर्स को इशू करना है, तो ये यहां पर क्या करवाएगी, पहले क्रेडिट रेटिंग यहां पर करवाई जाएगी इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो यहां पर इशू साइज बताती है कि मैक्सिमम ये क्रेडिट रेटिंग, लेट्स से कि यहां पर इसको ए की क्रेडिट रेटिंग दी गई है। क्या क्रेडिट रेटिंग दी गई है, ए क्रेडिट रेटिंग दी गई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये कितने अमाउंट तक के इशू के लिए दी गई है, लेट्स से ये यहां पर 700 करोड़ तक के अमाउंट तक के लिए यहां पर ए की रेटिंग दी गई है। साथ के साथ इसकी जो एक्सपायरी बताई गई है, यानी कि वैलिडेशन बताई गई है क्रेडिट रेटिंग की, ये बताई गई है अप टू द जनवरी 2023, ये जनवरी 2023 तक की बताई गई है। एंड इफ वी सपोज कि आज अगर 15 अगस्त है तो 15 अगस्त से लेकर के जनवरी 2023 तक की ही, जनवरी 2023 तक की ये जो यहां पर कमर्शियल पेपर रहेगा वो वैलिड रहेगा। चाहे यहां पर कमर्शियल पेपर की वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल तक की हो सकती है, लेकिन दैट कैन नॉट बी गोइंग बियॉन्ड द जो वैलिडेशन डेट यहां पर क्रेडिट रेटिंग दी गई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, उससे ज्यादा आगे नहीं मान सकते। इज दैट क्लियर, ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। तो एलिजिबल इश्यूअर्स कौन कौन से हैं, कंपनीज जिसमें कि एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शामिल है,
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। एंड फर्दर लेकिन उनको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनके पास जो भी उन्होंने फैसिलिटी अवेल की गई है, चाहे वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं, चाहे वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं। फंड बेस्ड फैसिलिटीज यानी कि उन्होंने टर्म लोन ले रखा है, उन्होंने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ले रखी है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटीज हैं, तो जो कोई भी फैसिलिटी ले रखी है दैट मस्ट बी स्टैंडर्ड फैसिलिटी, वो यहां पर स्टैंडर्ड एसेट की तरह क्लासिफाइड होनी चाहिए। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यूनियंस हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ट्रस्ट है, वो भी यहां पर क्या कर सकते हैं, वो जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको अलाउड है कि वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। यानी कि जो एनबीएफसीज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कह दिया कि आप इशू कर सकते हो, उसमें कोई भी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इशू कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज आपने ले रखी है किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो फंड बेस्ड है चाहे नॉन फंड बेस्ड है, वो यहां पर स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए। एंड फर्दर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ट्रस्ट हैं, उनके केस में कह दिया कि जिनकी जो यहां पर नेटवर्थ है वो यहां पर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, उनको अलाउ कर दिया कि वो कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। पहली बात, स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट का होना जरूरी है, लोन जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। एंड फर्दर जहां कहीं जो इशू का साइज है, कमर्शियल पेपर के इशू का साइज जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि अगर एक कैलेंडर ईयर में जो कमर्शियल पेपर इशू किए गए हैं अगर उनका अमाउंट 1000 करोड़ से ज्यादा है तो कम से कम जो क्रेडिट रेटिंग है वो A3 होनी चाहिए बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि अप्रूव्ड हो विद बाय द सेबी। यानी कि सेबी के द्वारा जो अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो रेटिंग दी जाए वो कम से कम A3 होनी चाहिए, जहां पर जो कमर्शियल पेपर्स इशू किए गए हैं विद इन 1 कैलेंडर ईयर वो 1000 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट के इशू किए गए हैं। एंड वहां पर कम से कम 2 आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। नॉर्मल केस में आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिंगल से आप क्रेडिट रेटिंग लेते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर जो इशू साइज है वो एक कैलेंडर ईयर में 1000 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर आपको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। यहां पर भी एक पॉइंट आता है रिलेटेड टू XYZ कंपनी, मान लीजिए 1000 करोड़ से ज्यादा के इशू करना चाहती है या कर चुकी है तो उसके केस में से 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। लेट्स से कि CR1 ने जो क्रेडिट रेटिंग दी है वो A3 है, CR2 ने जो क्रेडिट रेटिंग दी है वो भी A3 है। अब इसके केस में यहां पर CR1 ने जिस अमाउंट के लिए क्रेडिट रेटिंग दी है वो 500 करोड़ के लिए दी है एंड CR2 ने 700 करोड़ के लिए दी है, सॉरी 1500 करोड़ एंड 1700 करोड़ के लिए दी है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो लोअर लिमिट होएगी उसके हिसाब से ही यहां पर जो कमर्शियल पेपर है उसे इशू किया जा सकता है, उसके हिसाब से ही कमर्शियल पेपर जो है उसे इशू किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया, ओके। फर्दर इट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट भी अवेलेबल रहती है, किसके रिलेटेड, जो आपके पास कमर्शियल पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास सेकेंडरी मार्केट भी अवेलेबल रहती है। प्राइमरी मार्केट क्या होगी, जहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी है उसने कमर्शियल पेपर को इशू कर दिया, वो प्राइमरी मार्केट हो गई। सेकेंडरी मार्केट होगी जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं आपस में खरीद बेच रहे हैं, तो जितनी भी ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन होंगी उनको विद इन 15 मिनट्स यहां पर क्या बताना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म है वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 15 मिनट्स। ओवर द काउंटर ट्रेड क्या होता है, एक तो ट्रेड होता है जो एक्सचेंज के थ्रू होता है, यानी कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल आपके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके थ्रू आप यहां पर डील कर रहे हैं, तो वो गया। लेकिन जब आप आपस में यहां पर डील कर रहे हैं काउंटर पार्टी के साथ तो उसे क्या कहते हैं, उसे ओवर द काउंटर ट्रेड कहते हैं। तो यहां पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी अगर वो OTC हैं तो 15 मिनट में आपने उन्हें यहां पर क्या बताना है, रिपोर्ट करना है टू द फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड फर्दर कोई भी तरह का लोन जो है वो CP के अगेंस्ट अलाउ नहीं होता है, एंड मान लीजिए कि कमर्शियल पेपर की जिस दिन मैच्योरिटी हो रही है उस दिन अगर छुट्टी है तो उसके केस में कमर्शियल पेपर को पिछले दिन पे किया जाएगा। लेट्स से कि अगर कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी जो आ रही थी वो 15 अगस्त की आ रही थी विच इज अ वेल नोन हॉलिडे ओवर देयर, तो उसके केस में आपको एक दिन पहले यानी कि कमर्शियल पेपर को पे कर दिया जाएगा। कमर्शियल पेपर के केस में बायबैक जो है वो 30 दिन के बाद अलाउ किया जाता है, बायबैक जो अलाउ किया जाता है वो 30 दिन के बाद अलाउ यहां पर किया जाता है। इज दैट क्लियर?
आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.